याद है जब ये फिल्म मैंने साइन की थी, मैंने आदित्य को कहा था, इट वाज अ चाइल्डहुड ड्रीम फॉर मी टू बिकम आई वांटेड टू बिकम अ डायरेक्टर आफ्टर आई सॉ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। एक सपना था जो हकीकत बनते हुए देखा है हमने। मैंने या फ़हीम ने कभी ये सोचा नहीं था कि दो छोटे से बच्चे कश्मीर से इस प्लेटफॉर्म में आएंगे, फिर YRF के लिए एक गाना करेंगे। सो इट्स जस्ट अ सररियल एक्सपीरियंस फॉर बोथ ऑफ अस एंड इट्स रियली ओवरवेलमिंग। मुझे ना अंदर से वो रियलाइजेशन नहीं था कि मैं कोई रोमांटिक सॉन्ग बना सकता हूँ, ठीक है ना। बहुत झगड़े होते हैं। सबसे अच्छी बात इन्होंने बोल दी है। बहुत झगड़े होते हैं, बातचीत होती है, मन मुटाव होता है, और जब क्रिएटिव माइंड आपस में मिलते हैं, अगर ये बात नहीं हो रही तो वो क्रिएटिव माइंड नहीं है, दे आर यस मैन। Exactly, yes sir. I remember going and telling my wife कि मुझे अपनी फिल्म का हीरो मिल गया है. No, I'm actually really excited because while जो hero heroine, even though they are new, my writer is a new person. The people sitting on this thing are all doing it for the first time. Although me और Tanishq और ये are working together for the first. I mean we worked before, but all three together on one song we're doing it together. मेरे लिए बचपन में when I was going to दिवाली के वक्त एंड ऑल, जब यश जी और आदि सर की फिल्में रिलीज होती थी, आई यूज्ड टू गो टू वॉच अ लव स्टोरी इन द थिएटर व्हेन देयर फिल्म्स यूज्ड टू रिलीज एंड इट वाज ऑलवेज अ ड्रीम. मुझे याद है जब ये फिल्म मैंने साइन की थी, मैंने आदि सर को कहा था, इट वाज अ चाइल्डहुड ड्रीम फॉर मी टू बिकम आई वांटेड टू बिकम अ डायरेक्टर आफ्टर आई सॉ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, एंड आई थिंक दैट वाज समथिंग दैट ऑलवेज अट्रैक्टेड मी टू इट. तो जब ये फिल्म बनी है, लिखी, उस टाइम एक प्रोड्यूसर था नहीं, जब उस वक्त उस माहौल में सब लोग एक्शन फिल्म बना रहे थे, आई डिडंट नो पीपल वुड इवन वांट टू मेक अ लव स्टोरी, एंड स्पेशली समवन so when Akshay Vidhani, my producer, met me and said, would you like to direct a love story, do you have a love story for Yash Raj films, I told him I have this. I didn't know whether they would take it or no, but the fact that they're making it with newcomers with so much belief is a dream come true for me. So this is I feel like a newcomer again after 20 years of making movies and making 14 films. I can say I'm making my first film in Yash Raj, which is what I always started out to go out to make films for. So while all of them feel very proud that it's their first film, I feel like a newcomer myself. मुझे लगता है कि काफ़ी, I don't know about others, but I mean some people do things by design. मैंने कभी वो किया नहीं है. जब मैं विशेष फिल्में बना रहा था and I was making thrillers, मुझे सिर्फ लगा था कि जब सेट पे I was shooting a song or an emotional scene or a love scene actually, I was enjoying that part. I think Irshad Bhai will understand this more, and even as music directors will understand. Sometimes when you're making different songs, or you're making something creative, it's when the thing you're creating starts talking back to you. आपको खुद वो मज़ा आने लगता है कि it's not about क्या टाइम हुआ है और क्या वक्त हुआ है. तो for me it was shooting a love scene and stuff like that. तो जब I got some blockbuster success with Murder 2, I practically I begged Mukesh Ji and Bhatt Sahab to make a love story, और फिर आशिकी बनी थी. Since then I think life has just made me realize I think with experience you realize is what you don't want to do rather than what you want to do. And I'm not saying there's any genre that I don't want to do, but I just enjoy making this genre. मैंने कभी ये प्लान नहीं किया था कि आज ये गोल है कि यहाँ पहुँचना है. मैं शायद कहीं पहुँचना ही नहीं चाहता हूँ, but I just go with the flow, and I think the instinct of like how you make a song, ये कभी ये डिज़ाइन नहीं होता कि I don't think आप कभी anyone has come for a meeting saying कि आज ये सुर लगाने वाला हो, ये आज ये वर्ड में घुसा. I don't think careers should be made like a song where you all meet together and then jam and make a product, make a film, not even and then let the people who have to sell it, let them sell it. Your job is to just make it good and so that people can consume it. मुझे लगता है ये हम दोनों की लाइफ लॉन्ग मैनिफेस्टेशंस थी जिसको लेकर हम आज यहाँ पे हैं. And I'm ever so grateful to Sir and Tanishq for actually believing in that we would be able to do this, and exactly उस taste में जो जिसके लिए Sir जाने जाते हैं.
आई डोंट थिंक कि हम पे उतना प्रेशर पड़ा. आई थिंक वो दादा ने खुद ले लिया था जितना भी प्रेशर शायद सर की तरफ से आ रहा था. आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट. लेकिन बहुत एट ईज थे हम लोग. और मुझे ऐसा लगता है कि वी वर जस्ट बीइंग ट्रू टू द इमोशन जस्ट लाइक वी वर आस्क्ड टू बी. आई हैव ऑलवेज बिन अ फैन ऑफ सर एंड हिज पोइट्री. मैं खुद भी लिखता हूँ, लिखने की कोशिश करता हूँ. और फिर फॉर द फर्स्ट टाइम टू बी एबल टू सिट इन अ रूम विद हिम सिटिंग राइट अक्रॉस यू, और वो आपको बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस में से कुछ कुछ चीज़ें, और आप उनके साथ फिर कैसे रिलेट करते हो, यू नो, बिकॉज वी लुक अप टू द पीपल हु आर सिटिंग विद अस इन द पैनल टुडे. वो एक मुझे लगता है कि एक उस वक्त इंसान सोचना बंद कर देता है और उस मोमेंट को बस जीने की कोशिश करता है कि हाँ दिस इज़ फॉर रियल, कि मैं उन लोगों के साथ मैं इस वक्त हूँ एसोसिएशन में, या उन लोगों के साथ मैं चेयर शेयर कर रहा हूँ जिन लोगों को हमने हमेशा यू नो एक पेडिस्टल पे रख के ही देख. सपना था जो हकीकत बनते हुए देखा है हमने. मैंने या फ़हीम ने कभी ये सोचा नहीं था कि दो छोटे से बच्चे कश्मीर से इस प्लेटफॉर्म में आएंगे, फिर YRF के लिए एक गाना करेंगे, एंड मोहित सर डायरेक्ट कर रहे हैं, एंड आई विल बी अ पार्ट विद तनिष दादा and Irshad sir doing lyrics for this song. So it's just a surreal experience for both of us. मेरा पहला जो गाना था रोमांटिक बारिश, वो सर के साथ ही था हाफ गर्लफ्रेंड में. और मुझे ना अंदर से वो रियलाइजेशन नहीं था कि मैं कोई रोमांटिक सॉन्ग बना सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्फिडेंस चाहिए होता है. करता था पहले भी गाना, बट वो कॉन्फिडेंस देने वाला कोई था ही नहीं ज़िंदगी में. तो वो कॉन्फिडेंस मुझे सर से मिला. सर ही मेरे मेंटोर हैं. एंड उसके बाद मैंने एक्चुअली सीखा यू नो रोमांस कैसे बनता है. ज़िंदगी में बहुत रोमांस है, ठीक है, पर्सनली ज़िंदगी में फैमिली में भी रोमांस है, प्यार भी होता है, बट वो गाने में कैसे इमोट करूँ वो मुझे सर ने सिखाया. तो सैयारा का भी वैसा ही हिस्ट्री. जब ये गाना मैंने 3 साल पहले मैं इनसे मिला था, एंड मैंने इनके गाने सुने तो मुझे बहुत पसंद आए, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर बैठ के करवाया नहीं, ये अपने आप भी गाना बनाया अपने माहौल में. तो वो मुझे अच्छा लगा कि कोई ऐसा नहीं है, बाउंडेशन नहीं है. तो But that was a raw धुन. हाँ, raw धुन था. That didn't have हाँ, structure. कुछ their structure नहीं, song, कुछ and नहीं, but to ठीक. find out and tell a director like me कि ये इतना ये बहुत अच्छा धुन है, you have to give it to Tanish for that. And I'm But- not an easy guy to please. बट मैं आपको बताऊं, वो आया इधर से आया. मैंने कुछ ऑब्जर्व किया, उस जो भी ऑब्जर्व किया इमोशन उसमें मुझे समझ में आ गया. तो गाना पसंद आया तो मैंने फिर सर को भेजा, और फिर इरशाद भाई आए. इरशाद भाई तो यू नो इज द लेजेंड. मतलब फिर उनका टफ जॉब कि हाँ, एक्चुअली उनका हम लोग tough भेज job रहे है. हाँ. 16th ओवर में, और रन रेट ये है कि मैं वहां से चिल्ला रहा हूँ कि मुझे ये चाहिए, और वो वहां से चिल्ला रहा है कि ये धुन है. सोचो इनको कैसे बैटिंग करनी है. और अभी जो फिल्म आई है तो देखा तो मुझे, मैं कई फिल्म की है, ठीक है, इसके पहले भी किए हैं, और सर ने भी बहुत सारे फिल्म किए, बट ये फिल्म इतना स्पेशल इसलिए है कि इसमें हम लोग ना पहले से थे, एक पार्ट थे. नॉर्मली फिल्म में क्या होता है, जब भी मैं कोई फिल्म करता हूँ वो मुझे बोलते हैं एक प्रमोशनल गाना करना है, एक गाना, उसमें सिचुएशन भी पता नहीं चलता है, मैं गाना बना देता हूँ. इस फिल्म में पार्ट था ये गाने के साथ, तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम है कि किसी फिल्म में मैं इतना जुड़ा हूँ. सबसे अच्छी बात इन्होंने बोल दी है. बहुत झगड़े होते हैं, बातचीत होती है, मन मुटाव होता है, और जब क्रिएटिव माइंड आपस में मिलते हैं, अगर ये बात नहीं हो रही तो वो क्रिएटिव माइंड नहीं है, दे आर यस मैन. एग्जैक्टली, यस. और झगड़े भी प्यार जिससे प्यार करते हैं उनसे कर सकते हैं ना. उनसे कर सकते हैं, वो ज़रूरी है झगड़े. और रही बात जो आपने कहा रोमांटिक फिल्म की, एक्शन फिल्म में और रोमांटिक फिल्म में एक बहुत बड़ा जो फ़र्क लेके आता है वो म्यूज़िक लेके आता है. वी इंडियंस बाई डिफ़ॉल्ट आर म्यूज़िक लवर्स. Yeah. हमें संगीत से, हमें गानों से मोहब्बत है. हम सब सिंगर हैं, आप यकीन मानो हम सब सिंगर हैं अपने अपने लेवल पे, राइट. और जब कहाँ गाते हैं वो फर्क है. हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, अपने अपने लेवल पे अपने अपने लेवल पे सब सिंगर्स हैं. तो अब जब वो रोमांटिक पिक्चर आती है, कोई आप काम करना चाहते हैं, और वो मोहित सूरी की पिक्चर हो और YRF प्रोड्यूसर हो, जैसा आपने खुद ही बोला है कि ये लोग जाने ही रोमांस के लिए जाते हैं, और आप उसमें मतलब
आंखें बंद करके जंप करना चाहोगे उस प्रोजेक्ट में, राइट? और ये जैसे तनिष्क हैं या फ़हीम है, असलान है, एक होता है ना जब मजबूती की बात आती है ना, अकेली ईंटों की दीवार मजबूत नहीं होती, अकेला सीमेंट मजबूती नहीं लेके आता, उसमें थोड़ी सी रेती डालनी पड़ती है। अब दो ईंटों के बीच में कौन है, इन चीज़ों को जोड़ कौन रहा है? ये जोड़ रहे हैं, ये जोड़ रहे हैं, इनकी वजह से एक चीज़ बन रही है जो एक मजबूत, एक रोमांटिक, एक रोमांस निकाल के लेके आ रही है, राइट? तो मैं एज ए राइटर मैं ये समझता हूँ कि हर रोमांटिक गाना एक एजलेस गाना होने की संभावना रखता है। और हम भी जो सुनते हैं, जैसे अक्सर बात करते हैं पुराने गाने सुनते हैं, हम ज़्यादातर रोमांटिक गाने ही सुनते हैं, ना सारे के सारे रोमांटिक गाने सुनते हैं, राइट? तो हर एक रोमांटिक गाना एजलेस गाना होने की संभावना रखता है। तो सब लोग अपने अपने तरीके से एक एफर्ट, मैं एज ए राइटर, ये एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, ये एज ए डायरेक्टर, वो एज ए सिंगर, वो उतना उसमें आप जिसे कहते हैं गुड़ मीठा डाल दें, शक्कर डाल दें कि वो मीठा चलता रहे सालों सालों तक। और इन गानों में, जैसे पर्टिकुलरली सैयारा में वो बात हुई है। ये गाना आप के चाहने के बावजूद भी आपको जल्दी जल्दी छोड़ेगा तो नहीं। वो क्या सोच के आप लिखते हैं एंड ऑडियंस आपको लगता है कितनी चेंज हुई है सुनने वाले? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कुछ एक चीज़ें होती हैं किसी भी दौर में वो नहीं बदलती, किसी भी दौर में नहीं बदलती। इमोशंस किसी भी दौर में नहीं बदलते, मोहब्बत किसी भी दौर में नहीं बदलती, हमारा सच किसी भी दौर में नहीं बदलता। जो सच है वो हमेशा सच ही रहेगा, राइट? अगर हम तकलीफ़ में हैं तो जिस तरह से हम आज तकलीफ़ में होते हैं, तो 10 साल पहले भी हम उसी तरीके से तकलीफ़ में होते हैं थे, या 10 साल बाद भी हम वैसे ही तकलीफ़ में होंगे। मोहब्बत में होंगे तब भी हम। आपका इमोशन अगर सच्चा है ना, तो ऑडियंस कोई भी हो उससे आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसा अभी हमने बात थोड़ी देर पहले बात की थी कि हम ये सोच के लिखेंगे ओके अभी तो ये जेंजी ऑडियंस सुनने वाली है, अभी तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सच्चा इमोशन होगा वो कान से नहीं दिल से सुना जाएगा, और दिल को हर लैंग्वेज आती है। Factors, I just that's the factors. मुझे यार adding to this whole Gen Z and all that stuff, मुझे लगता है जैसे इरशाद भाई ने कहा, प्यार आपके उनका चेहरा चेंज हो जाएगा, बट वही दर्द होता है, वही स्टमक में बटरफ्लाइज होंगी, वही एक्साइटमेंट होगा, वही रात को नहीं सोना, सेम कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं। चाहे वो मेरी पहली फिल्म से हो, या मैं हमको ये कह रहा था, यू आर द 4th generation of newcomers I'm working with, right, starting from Imran Hashmi to Kunal Khemu to Kangana to Kangana. I did the second film, but Adhyan Suman tha, then Aditya and Siddharth and all these people. फिर अभी ये 4th or 5th, I don't even know which generation we are on, but हर जनरेशन में वो इनसिक्योरिटीज, वो वांट टू बी सक्सेसफुल, वांट फॉर लव, वांट फॉर एक्सेप्टेंस। जितना डर श्रद्धा को था रिलीज से पहले, उतना ही डर अनीत को है। जितना डर इमरान हाशमी को होता था, उतना ही डर अहान पांडे को है। वो चेंज नहीं होता, आई थिंक दैट डजंट चेंज। हाँ, थोड़ा सा ज़रिया चेंज हो गया है कि हम ऑनलाइन है, हम ये है, पर प्यार करना वही हो गया है। आप जितनी भी लेफ़्ट राइट स्वाइप कर दो, दिल वैसे ही टूटेगा। दिल की जगह वही है, थोड़ा सेंटर लेफ्ट, और टूटता उधर ही है, और ऑनलाइन नहीं। सो आई फील नथिंग। अगर आप देखिए तो वही गाने भी बज रहे, कोई रिमिक्स करके नए गाने बना रहा है। गाने तो वो शायद थे जब उनके पेरेंट्स फेल इन लव, बट आज भी लोग सुन रहे हैं। तो एज आई सेड, लाइक अ सॉन्ग नेवर गेट्स आउटडेटेड, अ ग्रेट मेलोडी डजंट। आई डोंट थिंक इवन लव स्टोरीज गेट आउटडेटेड। तो ऐसा मैंने कुछ चेंज किया है। शायद उनके कपड़े चेंज हो गए हैं, बट उसके सिवा और कुछ नहीं। एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मेरे को ये मुझे याद है, मैंने एक एक्टिंग वर्कशॉप में कभी देखा था
कि एक आदमी कैमरा ऑन करता है और एक सीन बताता है एक्टर को, और कैमरा शुरू करता है और वो एक्टर करता है, बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, और फिर डायरेक्टर वो बंद कर देता है एंड ही सेड नाउ योर एक्टिंग वर्कशॉप स्टार्ट्स, नाउ योर ऑडिशन स्टार्ट्स, व्हेन ही टर्न्स इट ऑफ. I think that is something I followed all my life. So while I saw him, he did every possible audition. हमारी एक casting director है शानू शर्मा, जिन्होंने मुझे showed me all the things, so both the boy and the girl. मैंने कहा मैं एक शाम इसके साथ गुजारता हूँ. I think that was the audition कि मैं उसके साथ बॉम्बे शहर में गया. ऐसे ही एक रात went out. मुझे लगता है तब वो काम नहीं कर रहा था, तब वो मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा था. आई थिंक दैट्स व्हेन आई रिक्वायर्ड फॉर दिस फिल्म और हाउ द पर्सन बिहेव्स ऑन द साइड. तो वो एक शाम वी पेंटेड द टाउन रेड. वी वेंट, आई थिंक वी वेंट फ्रॉम बैंड्रा टू अंधेरी टू टाउन टू बैंड्रा टू केम होम एट 5-6 o'clock in the morning and I remember going and telling my wife कि मुझे अपनी फिल्म का हीरो मिल गया है. आई थिंक जब आप काम नहीं कर रहे हो और जब आपको जज नहीं कर रहे हो, अगर लाइफ में ही ऐसा कर सकता है, आई थिंक दैट वाज द कैरेक्टर ऑफ माय फिल्म. प्रोसेस जो था बनने का वो भी बहुत सिंपल ही था. ऐसा नहीं कि बहुत सोच समझ के हम लोग ने गाना बनाया. जैसे मैंने पहले कहा, ये इमोशन जो है ना, ये सजा के नहीं होता है, वो रॉनेस जो है उधर निकालना पड़ता है. तो कॉम्पोजिशन इटसेल्फ वाज गुड. फिर उसको मैंने प्रोड्यूस किया और सर ने उसको मॉनिटर किया कहाँ पे कैसे कैसे है. बनने के बाद मुझे ऐसा फील आ रहा है कि ये गाना एक ऐसा कोलैबोरेशन है जिसमें हम लोग ने ये सोच के नहीं बनाया कि अपने को हिट गाना बनाना है. ये कभी भी नहीं था कि ये गाना हम लोग हिट करेंगे, स्पॉटिफाई में पहले आ जाएगा, ऐसा ये था ही नहीं थॉट. इसमें यही थॉट था कि हम लोग एक प्योर इंटेंशन से एक अच्छा रोमांटिक गाना बना रहे हैं. जैसे मैंने पहले गाना बनाया था फर्स्ट लाइफ का फर्स्ट सॉन्ग, वैसे ये भी गाना मेरे लिए फर्स्ट सॉन्ग जैसा ही है. तो उतना इमोशन हम लोग इसमें डालेंगे. और बाकी तो सर का ही कमाल है, जो सर इसको ब्लेंड करके जो विजुअल्स दिए. एंड अरसलान जो है, पहले इन्होंने गाना मुझे भेजा था गा के, तो इसके वॉइस में ही मैंने सुन के तब मैंने बोला कि वो बहुत अच्छा गाते हैं. तो अरसलान तुम बताओ था. बनाता हूँ. आई एम फ्रॉम कश्मीर, वी बोथ आर फ्रॉम कश्मीर. तो मेरा बस एक ही चीज़ रहता है कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है. यू रियली नीड टू ऑब्जर्व व्हाट इज़ अराउंड यू, यू रियली नीड टू हियर व्हाट्स अराउंड यू. तो सैयारा का भी कुछ ऐसा ही था. बताइए. हाँ सर. वो पेड़ की कहानी बताइए. वो एक पेड़ बाहर हो. तो एक स्टोरी आपको बताता हूँ ऐसे. तो एक गाना था मेरा, इट्स अ फारसी प्लस कश्मीरी सॉन्ग, इट्स कॉल्ड दर्द माँ. उसका मतलब फरियाद होता है. तो वो गाना मैंने 3-4 साल पहले बनाया था, बट मैं उसका हुक नहीं क्रैक कर पा रहा था. बहुत टाइम लगा, बहुत सारी टेक्स लगे, बहुत सारी मेलोडीज़ आई, बट मैं सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं था उस चीज़ से. तो मेरी घर के बाजू में एक जगह है, एक दरिया है, वहाँ पे मैं बैठता हूँ पेड़ के नीचे. एंड वहाँ पे मैं फिर गया, बैठा वहाँ पे. एंड इस बार मैंने गाने के बारे में नहीं सोचा, मैं बस अपने इर्द गिर्द देखने लगा कि क्या हो रहा है. एंड वहाँ पे एक परिंदा था, उसको हज़ार दास्ता कहते हैं. तो वो गुनगुनाने लगा. सो जिस तरीके से वो गुनगुना रहा था, मैंने उसी तरीके से उसका हुक बनाया. तो कमिंग बैक टू दिस टॉपिक कि आपको बस ऑब्जर्व करना है आज आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आपको हर कोई चीज़ मिल जाएगी. सो दैट्स इट. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. आपके आने वाली फिल्म के आपके Thank you very much. थैंक यू सो मच. थैंक यू.